اور سورہ توبہ، اس میں اللہ رب العالمین نے قتال کے، جہاد کے مسائل جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کرو، اللہ کے ساتھ یہ بے اور سودا کرو، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور سورہ توبہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سونا چاندی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سونے کی زکوٰۃ نہیں دیتے، چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ میرے بھائیوں، کئی مسلمان زبان سے تو مسلمان ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، کبھی کوئی بھی ہیلا، کبھی کوئی بہانہ، یہ سارے ہیلے بہانے اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں، ہمارے دلوں کی جو بھی کیفیت ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ اور سننے میں آیا کئی ایسے لوگ کہ 6 مہینے اگر زیور ہے گھر میں، وہ نصاب کو پہنچتا ہے، 6 مہینے خامند وہ اپنے پاس لاک میں رکھتا ہے، 6 مہینے بعد وہ بیوی کو دے دیتا ہے تاکہ سال پورا نہ ہو۔ میرے بھائیو، یہ ہلے اور بہنے اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں چلتے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو سونا چاندی چھپا چھپا کے رکھے اور اسے خرچ نہ کرے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ وہ عذاب، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، وہ سونا چاندی اس کی دھات بنا کر، اس کو پگھلا کر، پھر اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ دنیا کی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ۔ انسان تو دنیا کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی جو کیفیت ہے اس کے سامنے یہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جہنم کی آگ کی وہ کیفیت کیا ہوگی جو دنیا کے مقابلے میں 69 حصے زیادہ گرم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سونا چاندی اس کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا۔ تپانے کے بعد فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، سب سے پہلے ان کی جو پیشانیاں ہیں ان کو داغا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، پھر ان تختیوں کے ساتھ سونے اور چاندی کی ان کے جو پہلو ہیں، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، اس کے بعد ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، یعنی سامنے پیشانی کے اوپر بھی وہ گرم تختی جو ہے لگا کر اس کو عذاب دیا جائے گا، پھر پہلے کی دائیں اور بائیں جانب بھی اسی طرح پگھلایا جائے گا، پھر پشت کی جانب بھی اس کو یہ عذاب دیا جائے گا تاکہ یہ کسی صورت بھی لیٹ نہ سکے، نہ پیشانی کے بل، نہ پہلے کے بل، نہ اپنی پشت کے بل۔ یہ کیفیت ہوگی اس انسان کی جو دنیا کے اندر زکوٰۃ کے اوپر، زکوٰۃ کے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ سزا اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، کئی مسلمان جو کہتے ہیں کہ میں نے بچی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہیں اس لیے میں اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ بھئی تو نے بچی کی شادی کے لیے رکھے ہیں، تو نے حج کے لیے جوڑ کے رکھے ہیں، تو نے مکان کی تعمیر کے لیے جوڑ کے رکھے ہیں، جب اس میں نصاب، اگر وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، سال گزر جاتا ہے، جب تو شادی کرے گا، جب تو حج پہ جائے گا، جب تو مکان بنائے گا، وہ بات کی بات ہے۔ لیکن جس وقت وہ مال تیرے پاس اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، اس میں سال گزر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل کے اندر چور رکھتا ہے، بے ایمانی رکھتا ہے، اس طرح ہیلے اور بہانے رکھتا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذابوں سے اپنے آپ کو کبھی بھی بچا نہیں سکتا۔ اور یہ زکوٰۃ اتنا پیارا عمل ہے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتے ہیں آج لوگ تو سودی معاملات میں لگے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو سود کی بو سے بھی محفوظ فرما دے۔ تو یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کا سب سے ہلکا گناہ فرمایا کہ ایسے ہے کہ جس طرح کوئی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ بد اخلاقی اور بے حیائی والا کام کرتا ہے۔
इतना बड़ा गुनाह, लेकिन लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। हालांकि कुरान क्या कहता है, सूरह रूम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबु इंदल्लाह, फरमाया कि जो तुम सूदी मामलात करते हो लियरबु फी अमवालिन नासी, ताकि ये मेरा पैसा लोगों के पास बढ़ जाए, मैं ज्यादा पैसे का मालिक बन जाऊं। अल्लाह कहते हैं फला यरबु इंदल्लाही, ये सूद वाला पैसा बढ़ता नहीं है। और आपने मुशाहिदा अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो बंदा सारी जिंदगी सूदी मामलात करता है, खुद भी सूद खाता रहा, अपनी औलाद को भी खिलाता रहा, इसी हराम पे बेगैरती वाले पैसे पे अपनी औलाद को छोड़कर मर के चला गया है। मेरे भाइयों याद रखिए, खुद भी वो जिल्लत की मौत मरता है और क़यामत के दिन उसकी कैफियत क्या होगी, या तखब्बतुहु शैतान मिनल मसी, पागलों की तरह दीवाना बनकर अल्लाह की अदालत में हशर के मैदान में खड़ा होगा ये सूद खाने वाला इंसान। और इसके आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का जिक्र किया। हमें तो सूद डबल नजर आता है ना कि सूद के साथ पैसा बढ़ता है, लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर ना कोई सच्चा है, अल्लाह से बढ़कर ना कोई सच्ची बात कहने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़ीफून, जो तुम ज़कात अपने माल की अल्लाह की रजा के लिए देते हो फउलाइका हुमुल मुज़ीफून, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, अल्लाह उसके पैसों को, उसकी रकम को दुगना फरमा देते हैं। पैसा बढ़ता है, बरकत आती है ज़कात अदा करने की वजह से। बज़ाहिर ये नजर आएगा कि शायद 2,500 जो है वो लाख में से कम हो गया, लेकिन अल्लाह बड़ी बरकतें देते हैं। जो बंदा अपने माल को पाक कर लेता है, जो बंदा इसमें से हकदार का हक निकाल देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसलमान को, चाहे वो मर्द हो या औरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बड़ी बरकतें देते हैं। और मेरे भाइयों, दुनिया के लिहाज से देखा जाए, हमसे ये हुकूमतें कितने कितने टैक्स जायज नाजायज वो वसूल कर रहे हैं। एक माचिस की डिबिया भी अगर हम लेने के लिए दुकान पे जाते हैं, उसका भी हम टैक्स देते हैं, फिर लेते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमसे सिर्फ 2.5% का मुतालबा किया, हम वो देने के लिए तैयार नहीं। और फिर उसके बदले, उसके बरअक्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फायदे ही फायदे बतलाए हैं कि अगर तुम ये 2.5% दोगे, फायदा ही फायदा है, दुनिया का भी फायदा है, आखिरत का भी फायदा ही फायदा है। और इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़कात का पैसा तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, मालदारों से लिया जाएगा और जो मुआशरे के गरीब और कमजोर लोग हैं उनके ऊपर ज़कात का पैसा जो है वो तकसीम किया जाएगा। और वो ज़कात के हकदार अल्लाह ताला ने इसी 10वें पारे में सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने उनका भी जिक्र किया है। वो 8 किस्म के लोग हैं। इन्नमा सदकातु लिल फुक़राई वल मसाकीना वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिकाबि वल गारिमीना व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। फरमाया कि ये ज़कात के 8 किस्म के हकदार लोग हैं, फुक़रा और मसाकीन, यानी ऐसे लोग, ये फकीर और मिस्कीन तकरीबन एक दूसरे के बराबर बराबर है, जो अपने घर के अंदर अपनी जरूरत भी पूरी करने से कासिर है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अपनी जरूरत को भी पूरा कर सके। तो जो अपनी जरूरत पूरा करने में भी मजबूर है वो ज़कात का हकदार है। वो फकीर और मिस्कीन, वो सफेद पोश इंसान, उसके घर ज़कात को पहुंचाया जाए। वल आमिलीना अलैहा, जो ज़कात इकट्ठी करने वाले हैं उनकी तनख्वाह भी ज़कात के पैसे में से अदा की जाएगी। वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, तालीफ़े कल्ब के लिए, दिल नरम करने के लिए, अगर किसी गैर मुस्लिम का दिल इस्लाम की तरफ माइल है, वो इस्लाम की मोहब्बत अपने दिल में रखता है और उसके मुतालिक ये उम्मीद है कि ये इस्लाम को अपना लेगा, पसंद कर लेगा, मुंतखब कर लेगा, उसको भी ज़कात दे दी जाए, ताकि शायद वो इस अमल की वजह से उसके दिल में और ज्यादा इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो जाए कि दीन इस्लाम के अंदर कितनी हमदर्दी है, कितनी खैर खाई है कि वो गैर मुस्लिमों का भी ख्याल करता है। इसलिए फरमाया कि तालीफ़े तलब के लिए, वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिकाबे, गुलाम आजाद करवाने के लिए। मौजूदा दौर में अगर कोई कैदी जो नाजायज किसी जेल के अंदर कैद में है, तो उस कैदी के लिए भी अगर हम अपनी ज़कात को इकट्ठा करके उस बेचारे को आजाद करवा दे तो वो भी ज़कात का हकदार है। वल मसाकीन वल गारिमीना, मकरूज आदमी, वो मकरूज जो है अगर वो अपना कर्ज अदा करने की जो है गुंजाइश नहीं रखता
تو वो भी ज़कात का हकदार है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्नि सबील, अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदीन, अल्लाह के रास्ते में तलबा, जो अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करने वाले हैं, वो ज़कात के हकदार है। वब्नि सबील, और मुसाफिर आदमी, मुसाफिर आदमी अगर सफर में उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, वो चाहे अपने घर में करोड़ों रुपए का मालिक है, लेकिन सफर में उसके साथ कोई हादसा आ गया है, वो 1 रुपया भी उस बेचारे की जेब में बाकी नहीं रहा उस हादसे की वजह से, ज़कात के पैसे उस मुसाफिर को भी देकर उसकी जरूरत को पूरा किया जा सकता है। तो ये 8 किस्म के हकदार है। तो मेरे भाइयों, जिन पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरीजा मुकर्रर किया है, अगर सोना चांदी उनके पास है, सोने का निसाब 7.5 तोले है, चांदी का निसाब जो है वो 52 तोले है, और इसी तरह नकदी का हिसाब लगाया जाएगा कि मौजूदा जो रेट है चांदी का, उस हिसाब से 52 तोले जितनी नकदी बनती है, अगर उस पे साल गुजर जाता है तो वो उस पैसे उनके ऊपर जो हमारे पास रकम पड़ी है, अगर वो निसाब को पहुंचती है तो साल गुजर जाए, उस रकम की भी ज़कात अदा करनी चाहिए। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये माल जिसके इंसान ज़कात अदा नहीं करता, सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इस माल को एक काला और गंजा सांप बनाएंगे, उसकी 2 आंखें होंगी, वो ज़कात न अदा करने वाले के माथे पर जो है वो डंक मारेगा, उसको डसेगा और कहेगा आना कंज़ु का, आना माल का, मैं तेरा वो खजाना हूं, तेरा वो माल हूं जिसे तू छुपा छुपा के रखता था, जिसकी ज़कात अदा नहीं करता था। इसलिए मेरे भाइयों, ज़कात अहम फरीज़ा है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीजों पर है। जब किसी कोई भी इमारत बनाई जाती है, सबसे पहले बुनियाद रखी जाती है। बुनियाद मजबूत होगी, ठीक होगी, तो ऊपर बिल्डिंग भी ठीक होती है। अगर इमारत के नीचे बुनियाद ही ठीक ना हो, सतून ही ठीक ना हो, वो इमारत जो है, वो बिल्डिंग, वो अपने बाजुओं पे खड़ी नहीं हो सकती। तो ये ज़कात भी उन सतूनों में से इस्लाम का एक अहम तरीन सतून है। अगर हम अपने आप को मुसलमान समझते हैं, जिस तरह रोजा बड़े शौक के साथ रखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि नमाज की हमारी कोताही ना हो जाए, तो मेरे भाइयों, ये भी दीन इस्लाम का एक अहम तरीन सतून है। जिस मुसलमान पे भी ज़कात वाला फरीजा आयद होता है, उसे ये ज़कात जरूर अदा करनी चाहिए, और इसके साथ अपने माल को पाक करके अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब भी हासिल करना चाहिए। दुनिया आखिरत के लिहाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकतें उस मुसलमान को अता फरमाते हैं जो अपने माल की ज़कात अदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मुसलमान को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये किसी भाई ने मिसवाके भेजी है।